Good morning, all of you. Okay, let's start our new topic 13.5 nuclear force. Okay, we all know this force. Its name is strong nuclear force. Strong nuclear force. Then we are discussing some detailed or some observation of strong nuclear force. Then first observation is my strong nuclear force always strong nuclear force is always greater than coulomb coulomb force and gravitational force. Look, I am writing all the data in shortcut form, but hear my word and listen and watch this point, what I have speak and what I have written. Okay, then my strong nuclear force must be always greater than my coulomb force and gravitational force. Why? Because in the nucleus we had the protons as well as we has the neutrons, and we all know that this charge has the coulomb force, and if these two charges are of same positive, then they had coulomb's repulsion force, and if they are repel each other, then the stability of this nucleus may not be possible. Either we had something else between them, either we had something else force or some else force like a strong nuclear force or any other force which is attract them towards each other. Then we can say that if my strong nuclear force is equal to the coulomb force, then they are stable. Or either if my strong nuclear force is much higher than the coulomb force, then they are stable. Clear? Then our strong nuclear force must be greater than coulomb force. And why I wrote the gravitational force? Because these protons or say neutrons all have something mass, all have some mass, and if they had a mass, then they are attract each other by gravitational force. Clear? Then to stay stable in the nucleus, my strong nuclear force must be greater than coulomb force and gravitational force. Look, gravitational force is very much weaker. It's a very weak force. Our strong nuclear force must be greater than the coulomb force. Okay? Otherwise, the stability of our nucleus can't be possible. Okay, then the second observation is our strong nuclear force. Look, I have write down strong nuclear force has the lower range. It said that it's rapidly become rapidly become zero for greater than some hepto or femtometer. Did you know the femtometer 10 raised to minus 8 meter? Okay, it's rapidly becomes zero for greater than 10 raised to minus 8 some femtometer. Clearly इसे समझो. When my strong nuclear force, देखो strong nuclear force has a low range means if this proton attract this proton up to this range, my strong nuclear force due to this proton is exist. Above or after this range, if I had the neutron over here, this proton can't attract by strong nuclear force to this neutron. Clearly means strong nuclear force has the very lower range. In the nucleus, the strong nuclear force attract only nearby protons and neutrons, nearby nucleons. Clear? Because strong nuclear force becomes zero rapidly from greater than some femtometer. What happened or what is the benefit of this lower range? The first benefit is it is possible
saturation of nucleus or saturation of nuclei due to this lower range. Why? If look, I have drawn one nucleus figure, positive 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 and zero negative, sorry, neutrons, protons and neutrons. If I have to add some neutrons or protons or subtract some neutrons or protons from this nucleus, I have to apply force only to break down the strong nuclear force applied by nearby nucleons. अगर मुझे इस प्रोटॉन को बाहर निकालना है तो उसके पास वाले प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की वजह से जो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसे ही ब्रेक करने जितना हमें फोर्स अप्लाई करना होगा. ये वाला जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे कोई भी इस वाले प्रोटॉन के ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा. वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैज द लोअर रेंज. क्लियर हो रहा है? तो इससे बेनिफिट क्या है? हर तरफ अगर मुझे इससे निकालना है तो सेम वे में जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत थी उतना ही फोर्स यहाँ पे भी अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि नियर बाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ही है जो उसे बाहर निकालने के लिए अट्रैक्ट कर रहे, बाहर निकलने से रोक रहे. क्लियर हो रहा है? तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज बहुत कम होने की वजह से हर एक जगह पे सेम क्वांटिटी है, सेम क्वांटिटी ऑफ फोर्स अप्लाई हो रहा है. अगर मैं इसके अंदर कुछ ऐड भी कर दूँ तो बहुत ज़्यादा फोर्स में कोई वेरी नहीं करेगा. उसीलिए हमने लास्ट टॉपिक में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, बाइंडिंग एनर्जी आर कांस्टेंट फॉर रेंज 30 to 170. वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैज द लोअर रेंज. ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अप्लाई बिटवीन टू प्रोटॉन and neutrons. Means what? Strong nuclear force is independent of charge. I can say that it's independent of charge. Why? Because it apply between neutron and neutron also. It's apply between proton and neutron. It has the positive charge. It has nothing. It has two positive charge. Then also it's attraction type. तो रिमेंबर माई वर्ड. दिस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में भी उसमें ही रिमेंबर रखो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रैक्टिव टाइप है. क्लियर हो रहा है? वो रिपल्सिव भी है बट कम है. चलो रेंज में देखते. देन लुक, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है, एक प्लॉट है. देखो ध्यान से इस प्लॉट को देखो. दिस प्लॉट इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रेंज और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ग्राफ है. देखो ध्यान से इस ग्राफ को अच्छे से देखो. ओके, चलो इस ग्राफ को ध्यान से देखो. तो इस ग्राफ के ऊपर से क्या ऑब्जर्वेशन पता चलता है पता है? वी हैड मिनिमम, where we had the minimum potential energy nearly about 0.8 Fermi meter. look, x axis Fermi meter में, तो 0.8 Fermi meter पे we had the minimum potential energy for less than or greater than both जगहों पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. देखो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है. देखो ध्यान से इस ग्राफ को ध्यान से देखो. तो फॉर लेस देन भी ये इंक्रीज हो रही है एंड फॉर ग्रेटर देन भी ये इंक्रीज हो रही है. तो मीनिंग क्या हुआ? यानी कि 0.8 फर्मी मीटर जब टू न्यूक्लियंस, न्यूट्रॉन आइदर प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अगर दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर है तो तब तक उसमें कुछ नहीं होगा. बट इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर मैं इस प्रोटॉन को दूर ले जाऊं और इस न्यूट्रॉन को भी दूर ले जाऊं एंड ट्राई टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्ट टू देम. तो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स उन्हें और भी ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा. तो क्या होगा? उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी. तो अगर उन दोनों के बीच में गैप इंक्रीज होता है तब भी अट्रैक्टिव टाइप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होता है. सेम वे में अगर मैं उन दोनों को एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करूँ, 0.8 से भी और ज़्यादा पास में लाने की कोशिश करूँ, देन दिस फोर्स आर रिपल्सिव टाइप.
तब भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर मुझे उन दोनों को पास में लाना है तब भी मुझे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ये सेम वे में है एज ए स्प्रिंग। आपने स्प्रिंग देखी हुई है, अगर ये फ्रीली मूवेबल स्प्रिंग अभी एकदम जीरो कंडीशन में है तो कुछ नहीं हो रहा है। आइदर आई स्ट्रेचिंग इट और कंप्रेसिंग इट, बोथ वे में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सेम वे में अगर मैं उन दोनों के बीच में गैप इंक्रीज करूं या फिर डिक्रीज करूं, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी कि फोर्स जब इंक्रीज करूं तब अट्रैक्शन टाइप होगा, जब डिक्रीज करूं एक दूसरे के पास में लाने की कोशिश करूं तब रिपल्सिव टाइप होगा। बट बेसिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है। जब बहुत पास में आता है तब रिपल्सन होता है, बहुत दूर में जाता है तो अट्रैक्शन होता है। जब एक दूसरे के साथ 0.8 फर्मी मीटर पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स व्हाट? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अ स्टेबल पोजीशन टू स्टे देयर। अगर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो मैं स्टेबल रह पाऊंगा। अगर मैं ग्राउंड पे हूँ तो मेरी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो मैं स्टेबल रह पाऊंगा। जैसे जैसे मैं अपनी हाइट इंक्रीज करते जाऊंगा वैसे वैसे मेरी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो और भी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, समझो। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्टेबल कंडीशन या फिर स्टेबल पोजीशन, मेन वर्ड। ओके, चलो देन हम लोग यहाँ पे थे दैट strong nuclear force is applied between proton proton, proton neutron and neutron neutron. Means what? The strong nuclear force is independent of the charge. Then यहाँ पे एक और चीज हमें लिखनी हुई है। ओके, मैं इससे पहले इरेज कर देता हूँ, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो। वी हैव टू राइट डाउन दैट we don't have mathematical equation for strong nuclear force like Coulomb force एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। समझो, इस चीज़ को समझो। पहले तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज है, एंड द सेम वे हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की इक्वेशन है k² अपन r² और g m1 m2 अपन r²। ग्रेविटेशनल की भी इक्वेशन है, कूलम की भी इक्वेशन है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कोई इक्वेशन नहीं। बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, हाइएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, रिमेंबर रखो। बट उसकी रेंज बहुत कम है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ रेंज के अंदर ही अप्लाई हो रहा है। ये हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट भी है, जिससे कि न्यूक्लियस स्टेबल रह पाए। अगर न्यूक्लियस स्टेबल है तो फिर एटम स्टेबल है, एटम स्टेबल है तो पार्टिकल स्टेबल है, पार्टिकल स्टेबल है तो नेचर स्टेबल है। समझो इस चीज़ को। बट ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस में अप्लाई हो रहा है, ये उसका बेनिफिट है। अगर इस पेन और मेरी फिंगर के बीच में भी अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई हो रहा था तो मैं इस पेन को अपनी फिंगर से निकाल ही नहीं पाता, इतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। समझो, मैंने बताया था कल कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसके अंदर से एक न्यूक्लियन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितनी एनर्जी चाहिए होती है हमें। तो उससे आप समझ जाओ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, चलो देन आज हम अपना मेन टॉपिक, आज का जो मेन टॉपिक है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, रेडियो एक्टिविटी। ओके, आज हमारा ये मेन टॉपिक है आज का, और ये आपकी इस वाले चैप्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट क्यों? अगर ये वाले टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया, अगर ये वाले टॉपिक की कैलकुलेशन आपको आ गई, देन ये वाला चैप्टर खत्म। मेनली यही है, रेडियो एक्टिविटी। ओके, देन वो बाइंडिंग एनर्जी हमने देख लिया, अल्फा बीटा गैमा था, अल्फा बीटा गैमा डीके था, बट अब वो इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। अब आपको एक ही टॉपिक देखना है, ये वाला टॉपिक। ओके, देन चलो 13.6 रेडियो एक्टिविटी। चलो मैं इसे एक्सप्लेन करनी, तो सबसे पहले बैक्वेरल। देखो यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम लिखा हुआ है, A.H. बैक्वेरल। ओके, A.H. बैक्वेरल ने, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने 1896 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था पता है? उन्होंने एक यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, में भी मैंने कोई गलती नहीं करी ना, ओके, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट का एक पीस लिया, उस पीस के ऊपर विजिबल लाइट इल्यूमिनेट करी, फिर उस पीस को
ब्लैक पेपर से पैक कर दिया, व्रैप कर दिया। फिर उस ब्लैक पेपर को लाइट से बचाने के लिए सिल्वर बॉक्स में रख दिया, सिल्वर मेटल के बॉक्स में रख दिया, और उसके ऊपर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रख दी। समझो, पहले इसके अंदर क्या है, पोटेशियम सल्फेट, यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट, यानी कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को उसने ब्लैक पेपर से व्रैप कर दिया। इसका मीनिंग क्या है, ब्लैक पेपर का मीनिंग है टोटली ब्लैक मैटर। आपने पढ़ा था 11th में, टोटल ब्लैक मैटर एंड टोटल वाइट मैटर। तो ये जो ब्लैक कलर है वो टोटल ब्लैक मैटर है, यानी कि उसके अंदर से कोई भी एनर्जी एमिट नहीं होती है, जितनी भी एनर्जी उसके अंदर डालो वो सब एब्जॉर्व कर लेता है। एंड सेम वे में सिल्वर जो है, सिल्वर वो टोटली वाइट मैटर है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी रेडिएशन या फिर कोई भी एनर्जी गिरा वो फिर से वो रिपल्सन कर देगा, सारी एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो उसने यूरेनियम को पहले ब्लैक पेपर में, उसके बाद उसके ऊपर सिल्वर पेपर से पैक करके उसके ऊपर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रख दी। जो फोटो सेंसिटिव प्लेट क्या करेगी, अगर इसके अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है तो उसे अपने ऊपर फ्लोरेंस करेगी। उसे ये भी कह सकते हो कि फ्लोरेंस कर सकते, या फिर फ्लोरेंस ही मेन वर्ड है, ग्लो करेगी, या फिर कोई ना कोई पॉइंट निकल के आएंगे जो हमें दिखेंगे फोटो सेंसिटिव प्लेट के ऊपर। और उसे रखने के बाद कुछ आवर के बाद उस फोटो सेंसिटिव प्लेट को ऑब्जर्व किया तो उन्हें वहाँ पे ब्लैक लाइन या फिर ब्लैकलिंग दिखाई दिया, ये भी कह सकते हो, या फिर ब्लैक लाइंस दिखाई दी। तो उसने ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि अगर मैंने यहाँ पे कोई मटेरियल रखा हुआ है, अगर उसमें से कोई पार्टिकल बाहर निकल रहे तो उसके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए कि वो ब्लैक पेपर को और सिल्वर को दोनों को पेनेट्रेट करके बाहर निकल जाए, दोनों को पेनेट्रेट करके बाहर निकल जाए। उतनी ज़्यादा एनर्जी के कोई ना कोई पार्टिकल बाहर निकलने चाहिए। क्लियर हो रहा है? वो पार्टिकल कब निकल सकते हैं, जब वो अपनी न्यूक्लियस में से एनर्जी लेके निकले। तो उसने ये बताया कि ये जो भी कोई प्रोसेस है ना वो न्यूक्लियर प्रोसेस है। ये जो भी कोई प्रोसेस है वो पहले तो न्यूक्लियर प्रोसेस है, क्योंकि न्यूक्लियस में से जब बाहर निकलेंगे तब उसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी। तो अगर न्यूक्लियस में से कोई पार्टिकल बाहर निकल रहा है उसका मीनिंग है कि न्यूक्लियर ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर एक और वर्ड है उस न्यूक्लियर का डीके हो रहा है। क्लियर हो रहा है? न्यूक्लियस में से अगर कुछ बाहर निकल रहा है तो न्यूक्लियस का डीके हो रहा है, और ये न्यूक्लियस डीके हो रहा है यानी कि कुछ टाइम के बाद उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, यानी कि ये जो न्यूक्लियस या फिर ये जो मेटल है वो अभी एक्टिव मेटल है। उसके अंदर से कुछ ना कुछ एनर्जी कंटिन्यूस बाहर निकल रही है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, डीके हो रहा है उसका। तो कुछ समय के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इस एक्टिव मटेरियल की वजह से और उसके अंदर से कुछ ना कुछ रेडिएशन बाहर निकलने की वजह से उस मटेरियल को रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं, और उस प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये सबसे पहले एकदम बेसिक डिटेल रेडियो एक्टिविटी की बैक्वेरल ने फाइंड करी थी। फिर उसके ऊपर एन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। फिर हमें पता चला कि उसके अंदर से अल्फा, बीटा एंड गैमा टाइप 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन बाहर निकलते हैं। अल्फा यानी क्या? हीलियम न्यूक्लियस 2He4 वाला हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकलता है। बीटा यानी क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, या फिर इलेक्ट्रॉन जितनी ही मैग्नीट्यूड बट पॉजिटिव चार्ज, इसे पॉजिट्रॉन कहते हैं। बीटा 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 डीके में इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन बाहर निकलते हैं, और गैमा डीके में कोई भी पार्टिकल तो बाहर नहीं निकलता, फोटोन बाहर निकलते हैं, ऐसा कह सकते हो, फोटोन्स, जिसके बाद बहुत किलो वाट जितनी एनर्जी होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वाट जितनी एनर्जी होती है। तो गैमा में बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल बाहर निकलते हैं, अल्फा में बहुत ज़्यादा वेट वाला पार्टिकल बाहर निकलता है, अल्फा 2He4। ओके, इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और यहाँ पे सिर्फ एनर्जी बाहर निकल रही है। ओके, ये 3 टाइप के डीके हमें पता चले कि 3 टाइप के रेडियो एक्टिव मटेरियल में से कुछ ना कुछ पार्टिकल बाहर निकलते रहते हैं। नाउ आज हम देखने वाले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जो इस वाले चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस लॉ देन ये वाले चैप्टर में सब कुछ आसान है, या फिर ये कह सकते हो कि ये वाला चैप्टर मेनली इसी के ऊपर है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। देख लो, okay, law of radioactivity. Then I am writing the definition for law of radioactivity. Then यहाँ पे भी आपको देखना है तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है ना, शायद उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है, बट मैं वो मिस्टेक दूर करके पूरी डेफिनेशन लिखूंगा और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कहाँ पे मिस्टेक है। चलो, तो यहाँ से देखो, इसके अंदर डेफिनेशन आ जाएगी।
अल्फा बीटा गामा डीके के बाद इट इज़ फाउंड दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ देखते रहना, फिर मैं जूम आउट करूँगा। इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ nuclei undergoing the decay per यूनिट, अच्छे से समझ लेना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, पर यूनिट टाइम इज proportional to total numbers of nucleus in the sample at that time। ये वर्ड नहीं लिखा हुआ एट दैट टाइम, और इस वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अब यहाँ पे ध्यान दो कैमरा के अंदर। ओके चलो मैं फिर से डेफिनेशन पढ़ता हूँ। इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस अंडरगोइंग द डीके, देखो मैंने बहुत रफली लिखा हुआ है, मेरे वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है मुझे पता है, चलो ध्यान देना। अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर डीकेइंग इज proportional to the total number of nucleus in the sample at that time। ये वर्ड मैंने क्यों लिखा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो मान लो कि स्टार्टिंग में मेरे पास ये कोई एक मटेरियल है जिसके अंदर 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियस है। आफ्टर 2 मिनट ड्यूरिंग द डीके, ड्यू टू द डीके इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकलता रहता है। आफ्टर 2 मिनट इट रिमेन 94 न्यूक्लियस इनसाइड दिस न्यूक्लियर, इनसाइड दिस मटेरियल। अब इस मटेरियल के अंदर 2 मिनट्स के अंदर 94 न्यूक्लियस रह गए। देन अगर मुझे इन सारे डेटा के ऊपर से ये डेफिनेशन लिखनी है, इस डेफिनेशन को देखते रहना, इस डेफिनेशन को अगर मुझे इस डेटा के अकॉर्डिंग लिखनी है तो क्या डेफिनेशन है देखो। इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस अंडरगोइंग द डीके पर यूनिट टाइम। तो चलो मुझे बताओ 2 मिनट्स में हाउ मेनी न्यूक्लियस आर डीकेइंग, 2 मिनट्स में 100 minus 94, how many nucleus are decaying? 6 nucleus। then this my 6 nucleus per unit time 2 minutes में। then देखो ये हो गया number of nucleus decaying per unit time is proportional to the total number of nucleus in the sample। तो इसके अकॉर्डिंग इतना सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 100 जो आता है वो आंसर आना चाहिए, 100 लिखना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल एट दैट टाइम, यानी कि 2 मिनट्स के बाद, आफ्टर 2 मिनट्स एट दैट टाइम व्हेन द न्यूक्लियस रिमेन्स आर 94 और व्हेन द 6 न्यूक्लियस आर डीकेइंग, देन द टोटल नंबर प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन द सैंपल रिमेनिंग न्यूक्लियस इन द सैंपल एट दैट टाइम। तो एट दैट टाइम तो उसके अंदर सिर्फ 94 ही न्यूक्लियस रह जाते। तो is written like this, the number of nucleus decaying per unit time is proportional to the total number of nucleus in the total number of nucleus remaining in the sample at that time। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है, at that time। ओके गुजराती मीडियम में ये जो बुक है ना उसके अंदर लिखा हुआ है, बट गुजराती में आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ 94। ओके सेम वे में अगर मुझे इस डेफिनेशन को जनरल फॉर्म में लिखना है तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा delta n upon delta t proportional to n, where my this delta n is what, number of nucleus that decay। delta n is not a difference, अच्छे से समझ लेना, ये जो डेल्टा n है वो मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स ओनली जस्ट अ नंबर, मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट आर डिकेइंग, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डेल्टा n अपन डेल्टा t प्रोपोर्शनल टू n, n मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट रिमेनिंग एट दैट टाइम आफ्टर डिके। क्लियर हो रहा है, या फिर जिस पॉइंट पे मैं डीके देख रहा हूँ उस पॉइंट पे हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियस आर रिमेनिंग इन द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल। क्लियर हो रहा है। अब देखो हमें एक इक्वेशन मिल गया, अब देखना मैं बहुत लंबी कैलकुलेशन करने वाला हूँ। अब जो जिसको भी ये कैलकुलेशन समझ में आ गई समझो उसको लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी पता चल गई।
अब देखते रहना, यहाँ पे मैं फिर से इक्वेशन लिखूंगा और लंबी कैलकुलेशन जाने वाली है, और कैलकुलेशन जब खत्म होगी हमारा वीडियो ही खत्म हो जाएगा। चलो देखते रहना। देन देखो, डेल्टा एन अपन डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, अटेंशन पूरा रखना है यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने बताया ना वीडियो खत्म हो जाएगा, तो अब सब लोग टाइम देख रहे होगे वीडियो में कि कितनी लंबी वीडियो है। बट अभी देखो, अभी जब मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ तब मेरे लिए तो ये जो इंस्टेंटेनियस ये जो पॉइंट है तब वहाँ तक ही मेरी वीडियो रीच करी। मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ तक वीडियो जाएगी। अब इसे मैं बता भी नहीं सकता कि एंड पॉइंट कौन सा होगा। आप लोग शायद डायरेक्ट देख सकते हो यूट्यूब पे कि कितनी लंबी वीडियो बनी है। तो पूरा फोकस अभी यहाँ पे रखो, कितनी लंबी वीडियो, कितना कैलकुलेशन देखना है वहाँ पे नहीं। ओके, चलो। डेल्टा एन अपन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट डीके इन डेल्टा टी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग न्यूक्लियस एट दैट टाइम। And now if I remove the proportionality constant, then my equation become delta n upon delta t is equal to lambda into n, where this lambda is not a wavelength, it's a constant, decay constant. इसे कह सकते हो आप decaying constant। आपको बुक में दिखना है तो देख सकते हो, अभी मुझे इसे थोड़ा और ऊपर लेना है। डीके कांस्टेंट दिख रहा है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। अरे, दिस इज डीकेइंग कांस्टेंट और डिसइंटीग्रेटेड कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट मेन वर्ड है इसका। ओके, डीके कांस्टेंट लैम्डा। नाउ एक और स्टेप, एक स्टेप हो गया। नाउ अनदर स्टेप, इफ आई वांट टू राइट डाउन डेल्टा एन विच इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे देखो विच इज द डीकेइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस, उसके जगह पे इफ आई वांट टू राइट डाउन द डिफरेंस डेल्टा एन, ये क्या है मैंने क्या बताया, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियस है विच आर डीकेइंग। इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई वांट टू राइट डाउन द डिफरेंस डी एन अपन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को भी मुझे डिफरेंस में लेना, और यानी कि 0 से लेके चलो 2 मिनट्स, ये तो हो गया 0 से 2 मिनट। बट यहाँ पे अगर मुझे ये डिफरेंस में लेना है डी एन, देन डेल्टा एन की जगह अगर मैं डी एन लिखूंगा ना, तो ये जो डेल्टा एन वाला पार्ट है ना उसके अंदर माइनस ऐड हो जाएगा। डेल्टा एन अपन डेल्टा टी, इफ आई रोट डेल्टा एन अपन डेल्टा टी, उसके जगह पे मैं डायरेक्ट डी एन अपन डी टी नहीं यूज़ कर सकता हूँ। डेल्टा अपन डेल्टा टी को माइनस से मल्टीप्लाई करो तब उसकी जगह पे मैं डी एन बाई डी टी यूज़ कर सकता हूँ एट दिस प्लेस। वाई? बिकॉज डेल्टा एन अपन डेल्टा टी इज पॉजिटिव, बिकॉज डेल्टा एन इज जस्ट अ नंबर, डेल्टा एन इज जस्ट अ नंबर 6 विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट डी एन इज ए डिफरेंस। एंड यहाँ पे डिकेइंग हो रहा है, देखो डिकेइंग हो रहा है। ये मैंने जो सैंपल लिया था देखो 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे, 2 मिनट्स के बाद 94 रिमेनिंग है। तो अगर मुझे डी एन यानी कि डिफरेंस चाहिए, तो डिफरेंस मीन्स व्हाट, एंड पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यही करते हैं हम लोग डिफरेंस के अंदर। तो एंड पॉइंट देखो क्या है 94, इनिशियल पॉइंट क्या है देखो 100, तो इन दोनों का डिफरेंस 94 माइनस 100 माइनस 6। यहाँ पे सिर्फ मुझे नंबर ऑफ, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन देखी थी उसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ चाहिए, नंबर ऑफ, इसलिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव था। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा एन इज जस्ट अ नंबर, दैट्स व्हाई इट्स पॉजिटिव। बट इफ आई वांट टू राइट डाउन द डेल्टा एन इंस्टेड ऑफ डी एन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस, देन आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ माइनस, बिकॉज दिस डिफरेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। अभी देखो इनिशियली 100 थे, फिर 94 रहेंगे, फिर अनदर 2 मिनट में 94 से में भी 86 हो रहे, 94 से 86 या फिर 88 हो रहे। तो देखो एंड में फिर से 88, इनिशियली 94, तो ये 88 माइनस 94 फिर से माइनस। क्लियर हो रहा है? तो ऑलवेज डीकेइंग यानी कि ये खाली हो रहा है। अगर खाली हो रहा है तो जो फाइनल नंबर होगा वो ऑलवेज इनिशियल नंबर से लेस देन ही होगा, तो ऑलवेज माइनस ही आने वाला है डिफरेंस। तो इफ अगर मुझे डेल्टा एन की जगह पे डी एन यूज़ करना है तो पहले डेल्टा एन को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तब मैं डी एन यूज़ कर सकता हूँ। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा डी एन अपन डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू एन। समझ जाओ, यहाँ पे दोनों जगह मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस डेल्टा एन अपन डेल्टा टी की जगह पे मैंने डी एन बाई डी टी लिख दिया। यहाँ पे माइनस जैसा है वैसा का वैसा ही है। ओके, नाउ इफ आई रोट डी टी ओवर हियर, अगर मैं डी टी को नॉमिनेटर में ले जाऊँ और डी एन को नॉमिनेटर में ले आऊँ, डी टी को नॉमिनेटर में ले जाऊँ और डी एन को डिनोमिनेटर में ले आऊँ, यानी कि एन एन वाले कंपोनेंट को एक तरफ कर दूँ, देन डी एन अपन एन इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू डी टी। क्लियर यहाँ तक? देखो बहुत लंबी कैलकुलेशन, अभी तो 1-2 स्टेप बाकी है। चलो देखो, देन अब ये हमारे पास डी एन में यानी कि स्मॉल फॉर्म में, इफ़ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट टोटल फॉर्म, इंटीग्रेशन करो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो।
अब एन की लिमिट कहाँ से लिखोगे? मैं लिखूंगा एन जीरो से एन तक। एन जीरो क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट इनिशियल 100. देन माई फाइनल एन इज व्हाट? नंबर ऑफ न्यूक्लियस एट द एंड. तो आपको क्वेश्चन राइज होगा कि एट द एंड, तो अगर ये डीके हो रहा है, अगर इसके अंदर से न्यूक्लियस बाहर निकल रहे हैं, तो एट द एंड तो इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहना चाहिए। नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। एट द एंड यानी कि जब उसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाए। तो उसकी रेडियो एक्टिविटी कब खत्म होगी पता है? ये एक जनरल डिटेल है। बाय एक्सपेरिमेंट वी हैव डिराइव दैट एट द एंड व्हेन माय टोटल न्यूक्लियस इज एट द एंड इनिशियल नंबर के ई, देखो इनिशियल नंबर एन जीरो था। इनिशियल नंबर को अगर ई से मैं डिवाइड कर दूं तो जितने न्यूक्लियस मुझे मिलते उतने न्यूक्लियस जब इसके अंदर रह जाएंगे ना, तब इसके अंदर से कोई भी डीके नहीं होगा, तब कुछ भी रेडियो एक्टिविटी मटेरियल बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि इसकी एक्टिविटी खत्म। तो ये जो एन नंबर है ना, वो एक्चुअली में एन जीरो बाई ई है, बट अभी उसे एन जीरो बाई ई से नहीं डिनोट करेंगे, वो हम कहीं और देखेंगे, कोई और टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए क्या रखो? एन जीरो यानी इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, एन यानी कि एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एंड जरूरी नहीं है कि हर बार एंड जो है वो रेडियो एक्टिविटी का ही एंड हो। अगर मैं टाइम पीरियड टी जीरो से टी तक दिखाऊँ और मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए चाहिए, तो शायद 5 मिनट टाइम पीरियड के अंदर ये खत्म नहीं हो रहे होते। तो 5 मिनट पे कितने रिमेनिंग है, ये पॉइंट समझो। स्टार्ट किया मैंने 0 से, 5 मिनट तक गया, तो सेम वे में स्टार्ट किया मैंने 100 से, 5 मिनट में भी इसके अंदर 70 न्यूक्लियस रह रहे, तो यहाँ पे तब 70 नंबर आएगा। तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये नंबर चेंज होगा। जब मैं यहाँ पे टाइम पीरियड लाइफ टाइम लेता हूँ रेडियो एक्टिविटी की, तब यहाँ पे एन की जगह पे मैं एन जीरो बाई ई यूज़ कर सकता हूँ। जब ये टाइम पीरियड लाइफ टाइम हो जाती है इस यूरेनियम न्यूक्लियस की, तब यहाँ पे मैं एन की जगह पे एन जीरो बाई ई यूज़ करता हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम यानी कि जब इसकी लाइफ खत्म होगी, यानी कि जब इसकी रेडियो एक्टिविटी खत्म होगी, तब उसके अंदर रिमेनिंग न्यूक्लियस हो गए एन जीरो बाई ई जितने। ओके, ये जनरल डिस्कशन है, मैं अपनी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा है जो हमें ऑब्जर्वेशन से पता चला है। चलो, तो फिर से आ जाओ लिमिट के ऊपर। इनिशियल लिमिट एन जीरो, फाइनल लिमिट एन, इनिशियल लिमिट टी जीरो, फाइनल लिमिट टी। ओके, अब 1/n का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/n इज ln n। रिमेंबर रखो, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ओके, मे बी मैथ्स में log x होता हो, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स में है ना ln की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है, होता भी है, बट डायरेक्ट लॉग बेस 10 से ही सारी कैलकुलेशन होती है मैथ्स में इंटीग्रल के अंदर। मैंने भी मैथ्स से ही पढ़ा था साइंस के अंदर, इसलिए शायद ऐसा होता है, मे बी मे आई रॉन्ग। ओके, चलो, 1/n की इंटीग्रेशन होती है ln n। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? एक्चुअल में तो n में ही लिमिट रखनी। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? n0 to n इज इक्वल टू, सेम वे में माइनस लेमड़ा तो कांस्टेंट है जो बाहर निकल जाएगा। माइनस लेमड़ा तो कांस्टेंट है ना, देखो माइनस लेमड़ा इज कांस्टेंट जो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? t। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? t0 से t तक। नाउ आई एम पुटिंग द लिमिट ओवर हियर। ln, पहले n रखता हूँ तो ln n माइनस सेकेंड लिमिट n0 ln n0 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा t और t0, t माइनस t0। नाउ इफ आई टेक t0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल पॉइंट जब 0 सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो t0 की जगह पे 0 लिखना होगा। एंड यू नो दैट अगर यहाँ पे मेरे पास लॉग में 2 वैल्यू है और दोनों के बीच में माइनस है, तो मैं उसे डिवीजन में लिख सकता हूँ। सेम वे में अगर बीच में प्लस होता है तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता है। ओके, चलो, जो भी लॉ हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, वो सब लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक साइड पे करते रहते हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना मैथ्स वालों को नहीं है, बट बायो वालों को ये प्रॉब्लम होगी कि ये कुछ ना कुछ नया नया दिखेगा उनको। चलो, देन सबसे पहले हमने इंटीग्रल 1/x dx का इंटीग्रेशन किया, तो उसका इंटीग्रेशन होता है ln x। देन सेकेंड थिंग, ln x माइनस ln y इज इक्वल टू होता है ln x/y। अगर इन दोनों के बीच में माइनस है तो डिवीजन में लिखो। सेम वे में इफ ln x प्लस ln y है तो मल्टीप्लिकेशन में लिखो x इंटू वाई। समझ रहे हो ना आप लोग? ओके, मे बी आपको समझ में आ रहा है। चलो, देन यहाँ पे देखो ln x माइनस ln n माइनस ln n0, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ ln n/n0 इज इक्वल टू माइनस लेमड़ा इंटू टी। वाई? बिकॉज t0 बिकम 0। देखो यहाँ पे t0 बिकम 0। तो अब अनदर फॉर्मूला, देखो यहाँ पे देखो, इफ आई हैड ln x इज इक्वल टू वाई एंड आई वॉन्ट टू फाइंड आउट x, देन x इज इक्वल टू, अगर मैं ln को इस तरफ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा e⁻y, बिकॉज ln के पास है ना बेस में e होता है। सेम वे में इफ आई हैड द log x इज इक्वल टू वाई,
तो लॉग में बेस 10 होता है, तो x इज इक्वल टू हो जाता है, ये बेस ऊपर चला जाता है 10⁻⁴। ln में बेस e होता है, उस वजह से अगर मुझे x को सेपरेट करना है तो ln इस तरफ चले जाएगा तो e⁻y हो जाएगा, क्योंकि बेस e है ln में। सेम वे में लॉग होता तो बेस 10⁻⁴ हो जाता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फोकस नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। हाँ, वाई इट्स नॉट फोकसिंग, अरे चलो, थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है फिर भी। ओके, आई एम ट्राइंग टू फोकस इट, बट ये क्या हो गया अचानक। ओके चलो, ln n अपन n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा टी। इफ आई, अगर मुझे n अपन n0 को सेपरेट करना है तो ln को इस तरफ ले जाऊंगा, देन n अपन n0 इज इक्वल टू ln उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे बेस क्या होता है e, तो ये सारा e के पावर में चला जाएगा, e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। देन n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। n मीन्स एट t पॉइंट, एट टाइम t, n इज द रिमेनिंग न्यूक्लियस, n0 इज द इनिशियल कितने न्यूक्लियस थे वो, ई तो ई ही है, लैम्बडा यानी कि डीके कांस्टेंट। देन दिस इज आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। देखो यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये रहा, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा इक्वेशन, और इसको क्या कहते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है 13.14। इस इक्वेशन को जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे यार, ये रहा वर्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल डीके लॉ लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल डीके लॉ। चलो, क्या कहते हैं उसे, इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल डीके लॉ। ओके, रिमेंबर रखना, क्यों, क्योंकि इसमें ई है, उस वजह से उसे एक्सपोनेंशियल। आप अगर साइंटिफिक कैल्सी देखोगे ना तो आपको वहाँ पे ई एक्स पी दिखेगा, वो ई एक्स पी क्या है, ई रेस टू का मीनिंग। अगर आप ई एक्स पी रेस टू 2 लिखते हो ना, तो उसका मीनिंग है ई रेस टू 2 हो रहा है, समझ रहे हो। इस ई रेस टू को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल डीके लॉ, जो हमारा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, हमने कैसे फाइंड किया, ये हमारे पास डेफिनेशन थी, डेफिनेशन से ये फॉर्मूला डिराइव हुई, उस फॉर्मूला को हमने डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में लिखी, डिफ्रेंशिएशन से हमने एन एन वाला एक तरफ, डी टी दूसरी तरफ, इंटीग्रेशन किया, लॉग में आंसर मिला, एल एन में आंसर मिला, एल एन को मैंने उस तरफ ले गया तो मुझे ई रेस टू में आंसर मिला, फिर एन को सेपरेट किया तो एन इज इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, जिसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ओके, n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। व्हाट इज n? Number of remaining nucleus at time period t, n0 is total nucleus at initial point, okay, lambda is decay constant and t is time। तो याद रखना इस इक्वेशन को, कैसे डेरिवेशन हुआ वो भी रिमेंबर रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ये जो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी ना, उसका इक्वेशन डिराइव करो या फिर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन डिराइव करो इस तरीके से। ओके चलो, अब इसी के अंदर और 3 पॉइंट्स हमें देखने, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के अंदर ही और 3 पॉइंट्स देखने। फर्स्ट पॉइंट इज रेट ऑफ डीके। चलो, तो मैं यहाँ पे पहले वो इक्वेशन एक बार फिर से लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू n0 ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। देन देखते रहना, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फाइंडिंग फॉर रेट ऑफ डीके। ओके, डीके की रेट का इक्वेशन फाइंड करने वाले, जिसे आर से डिनोट करते और जिसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं रेट ऑफ डीके को, कि कितने रेट से डीके हो रहा है उसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। तो रेट ऑफ डीके, ये रेट वर्ड तो हमने बहुत बार सुना हुआ। अगर रेट ऑफ डीके तो उसे मैं डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखूँ तो पता चलेगा आपको, डेल्टा एन अपन डेल्टा टी। समझो इस चीज को, रेट ऑफ डीके यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट डीकेइंग पर यूनिट टाइम, उसे ही रेट ऑफ डीके कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। अब रेट के बारे में इतनी बार, रेट ऑफ वर्क उसे ही पावर कहते हैं। देखो, पावर इज इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू अपन टी, वर्क डन पर यूनिट टाइम उसे पावर कहते हैं, या फिर रेट ऑफ वर्क उसे ही पावर कहते हैं। सेम वे में रेट ऑफ डीके, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट डीकेइंग पर यूनिट टाइम उसे ही रेट ऑफ डीके कहते हैं। नाउ वी नो द इक्वेशन ऑफ एन, but we can't write down n over here because
वाई? बिकॉज डेल्टा से हमें इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा, इस डेल्टा को डी एन में कन्वर्ट करना होगा। तो आई कैन राइट डाउन डेल्टा एन अपन डेल्टा टी की जगह पे माइनस डी एन अपन डी टी। हाउ? बिकॉज वी नो दैट डी एन अपन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एन अपन डेल्टा टी। आपको पता है ना, ये डेल्टा एन जस्ट अ नंबर, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो मुझे अगर डिफ्रेंशिएशन चाहिए तो डिफ्रेंशिएशन डीके हो रहा है, तो यानी कि लास्ट में, ये मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट में जो भी नंबर होगा वो इनिशियल से कम ही होगा, तो डिफ्रेंशिएशन माइनस ही आने वाला है। यहाँ पे पॉइंट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन माइनस ही आने वाला है। उस वजह से डी एन बाई डी टी चाहिए, तो डेल्टा एन बाई डेल्टा टी को माइनस से मल्टीप्लाई करना था। अब रेट ऑफ डीके की इक्वेशन में क्या हो रहा है, देखो रेट ऑफ डीके की इक्वेशन डेफिनेशन से हमने जो भी रेट ऑफ डीके की इक्वेशन लिखी उसके अंदर तो सिर्फ डेल्टा एन अपन डेल्टा टी है। तो अगर मुझे उसे डी एन बाई डी टी में कन्वर्ट करना है तो इस माइनस को उस तरफ लेना होगा, इस माइनस को उस तरफ लेना होगा, देन डेल्टा एन अपन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एन अपन डी टी। क्लियर? नाउ वी नो द इक्वेशन फॉर डी एन, सॉरी वी नो द इक्वेशन फॉर एन। ये रही इक्वेशन हमारी, एन इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अब ये इक्वेशन मैं यहाँ पे रख देता हूँ, देन माई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। चलो तो अब एक और मैथमेटिकल टर्म देखनी है हमें। अब एन जीरो कॉमन, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट ई रेस टू लैम्बडा टी बाई डी टी। ओके, तो देखते जाओ, माइनस एन जीरो डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। चलो तो मैं यहाँ पे आपको ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन दिखाता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू टू एक्स या फिर ई रेस टू ए एक्स, ई रेस टू ए एक्स है, यहाँ पे एक है ए आगे, ए यानी क्या, कोई इंटीजर नंबर, जिस तरीके से यहाँ पे लैम्बडा है, लैम्बडा कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर है, तो वही यहाँ पे ये ए जो है वो मेरा कांस्टेंट नंबर है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एक्स में, तो वी हैव ई रेस टू ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स। तो ई रेस टू ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा पहले तो ई रेस टू ए एक्स ही, याद रखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स, देन पहले डिफ्रेंसिएशन होता है ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई रेस टू एक्स। तो अगर हमारे पास ई रेस टू ए एक्स है तो ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन पहले तो हो जाएगा ई रेस टू एक्स ना, ऊपर जो भी ये कोई वैल्यू है उसका एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करना होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए कांस्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स वन, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू ए एक्स का जो फाइनल आंसर है वो आता है ई रेस टू ए एक्स इंटू ए। क्लियर हो रहा है? इन द सेम वे वी हैव डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा इस फॉर्म में जो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा वो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, माइनस एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ई रेस टू जो भी होता है पहले तो वही डिफ्रेंसिएशन होता है ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी। अब ऊपर जो माइनस लैम्बडा टी उसका एक बार फिर से डी टी से डिफ्रेंसिएशन, तो माइनस लैम्बडा कांस्टेंट डी टी बाई डी टी वन, सेम वे में यहाँ पे जो हो रहा था सेम वे में यहाँ पे मैंने किया। क्लियर हो गया आपको? माइनस एन जीरो जैसे का वैसा है, ई रेस टू माइनस टी लैम्बडा टी का डिफ्रेंसिएशन पहले ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी एंड माइनस लैम्बडा इंटू टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ लैम्बडा। देखो बायोलॉजी वाले ये मत बोलना कि अगर इतना मैथ्स करना होता तो हम मैथ्स ही नहीं ले लेते, सबको यही प्रॉब्लम है, बट जितना फिजिक्स में मैथ्स है उतना तो करना ही होगा आपको, उतना तो आना ही चाहिए। ओके, कोई एक्सक्यूज मत दो, कर लो, कोई इतना हार्ड वर्क नहीं दे रहा हूँ मैं आपको। आर इज इक्वल टू माइनस एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी इंटू माइनस लैम्बडा, माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस लैम्बडा और यहाँ पे माइनस 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 प्लस, देन माई आर की इक्वेशन क्या होगी, एन जीरो लैम्बडा ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, then this is our second one of the most important equation, जो कैलकुलेशन में ये वाली इक्वेशन और ये ऊपर वाली इक्वेशन, ये ऊपर वाली n इज इक्वल टू एन जीरो रेस टू माइनस लैम्बडा टी, जो हमने यहाँ पे नीचे भी डिराइव करके रखी है, डी के एक्सपोनेंशियल डी के इक्वेशन, रिमेंबर है ना? तो ये दो जो इक्वेशन है वो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, रिमेंबर रखना। अब उन्होंने शायद इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ, आर इज इक्वल टू आर जीरो रेस टू माइनस लैम्बडा टी, वेर आर जीरो इज वॉट, एन जीरो इंटू लैम्बडा, देन आर इज इक्वल टू वॉट, एन इंटू लैम्बडा। समझो इस चीज़ को, आर जीरो इज इक्वल टू वॉट, एन जीरो इंटू लैम्बडा, देन आर को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर को मैं एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, देखो एन इंटू लैम्बडा, देखो यहाँ पे एन जीरो ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, उससे ही एन कहते, नहीं समझ में आ रहा तो ये रही ऊपर इक्वेशन, एन इज इक्वल टू वॉट, एन जीरो ई रेस टू लैम्बडा टी। तो यहाँ पे देखो एन जीरो लैम्बडा को छोड़ दो, ई रेस टू लैम्बडा टी, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन,
उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ एन, देन मैं आर को एन इंटू लेमड़ा के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, आर जीरो इक्वल टू एन जीरो इंटू लेमड़ा, आर इज इक्वल टू एन इंटू लेमड़ा। आर इज वॉट, रेट ऑफ डीके, उसे रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो रेट ऑफ डीके की इक्वेशन क्या रिमेंबर रखनी है, एन इंटू लेमड़ा या फिर एन जीरो इंटू लेमड़ा या फिर आर इज इक्वल टू एन जीरो लेमड़ा ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी, यही रिमेंबर रखो ना, आर इज इक्वल टू एन इंटू लेमड़ा। एन की जगह पे एक इक्वेशन है हमारे पास एन जीरो ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी, जो हमारा एक्सपोनेंशियल डी की इक्वेशन है, जो हमें रिमेंबर होने ही वाला है। तो एक ही इक्वेशन याद रखो, आर इज इक्वल टू एन लेमड़ा। क्लियर? चलो अब बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की यूनिट की। तो सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी किसने ऑब्जर्व करी थी, बैक्वेरल ने। तो बैक्वेरल की याद में रेडियो एक्टिविटी की फर्स्ट जो एसआई यूनिट है वो है बैक्वेरल। उससे इस तरीके से भी लिख सकते हो, बी क्यू, 1 BQ इज इक्वल टू डिकेइंग न्यूक्लियस, डिकेइंग न्यूक्ली पर सेकेंड। पर सेकेंड में डिकेइंग होने वाले न्यूक्लियस को 1 बैक्वेरल कहते हैं। पर सेकेंड में डिकेइंग होने वाले न्यूक्लियस को 1 बैक्वेरल कहते हैं। बट जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है वो है क्यूरी। आपको रिमेंबर है ना मैडम क्यूरी, जिसने रेडियो एक्टिविटी के बारे में बहुत सारी डिटेल फाइंड करी थी। ओके, तो मैडम क्यूरी की याद में रेडियो एक्टिविटी का एक बिगर यूनिट जो है वो है क्यूरी। देन 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेइंग न्यूक्लियस पर सेकेंड। ओके, रिमेंबर रखना है 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेइंग न्यूक्लियस पर सेकेंड। और डिकेइंग न्यूक्लियस पर सेकेंड को तो एक बैक्वेरल भी कहते हैं। देन अगर मैं इन दोनों यूनिट को कंपेयर करूं, देन मैं ये लिख सकता हूँ 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल। देखो डिकेइंग पर न्यूक्लियस को तो बैक्वेरल भी कहते हैं। तो याद रखो बैक्वेरल उसका ऐसा यूनिट है बट वो स्मॉल यूनिट है। इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज होने वाला यूनिट क्यूरी यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, और वो यूनिट क्या है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल। ये रहा उन दोनों के बीच का रिलेशन। और ये आपको बहुत छोटी बात लग रही होगी बट 1 मार्क्स के इस टाइप के भी MCQ होते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डैश, यहाँ पे शायद ब्रैकेट दे देंगे 1 क्यूरी इज इक्वल टू डैश बैक्वेरल। देन आपको ये 3.7 इंटू 10⁻10 सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू डैश बैक्वेरल, तो 10⁻10। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस रिलेशन को भी अच्छे से समझ लेना है। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि ये आ जाए, आपको पूरी कैलकुलेशन पता और ये अच्छे से नहीं रिमेंबर और ये आ जाए। ओके, चलो तो नाउ अब हम, मैंने बताया था 3 टॉपिक्स देखने वाले, उसमें से एक देख लिया हमने रेट ऑफ डीके। अभी भी आप टाइम देख रहे हो, मेरे लिए तो अभी भी ये जो टाइम है वो प्रेजेंट टाइम ही है, मुझे नहीं पता है कब वीडियो खत्म होगी। चलो याद रखना ये वाली वीडियो इस चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वाली वीडियो और प्रीवियस वीडियो बाइंडिंग एनर्जी वाली, अगर ये 2 वीडियो आपने अच्छे से कर लिया तो ये चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा, या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। चलो अब हम देखने वाले न्यू टॉपिक जो बहुत ईजी वन है, बहुत ज़्यादा ईजी वन है। उस टॉपिक का नेम है टाइम पीरियड या फिर हाफ लाइफ, सेमी लाइफ भी कहते हैं उसे। देखो आपके बुक के अंदर क्या टॉपिक नेम क्या है, मुझे वो देख लेने दो। आपकी बुक के अंदर शायद उसे सेमी लाइफ ही कह के रखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाफ लाइफ ही लिखा हुआ है। ओके चलो, देन मैं हेडिंग देता हूँ इसके यहाँ पे, न्यू हाफ लाइफ। अच्छे से समझ लेना, हाफ लाइफ इज व्हाट, हाफ लाइफ मीन्स द रिमेनिंग न्यूक्लियस इज N0/2। जो इनिशियल न्यूक्लियस थे उसकी हाफ न्यूक्लियस होने पर जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है वो अगर इनिशियल न्यूक्लियस के हाफ हो जाए तो तब के टाइम पीरियड को हाफ लाइफ T1/2 से डिनोट करते हैं। समझो इस चीज़ को, व्हेन माई रिमेनिंग न्यूक्लियस बिकम N0/2 देन दिस टाइम पीरियड बिकम T1/2 एंड दिस, अरे यार फिर से फोकस चला गया। ओके, देन दिस T1/2 इज हाफ लाइफ। क्या है ये T1/2? हाफ लाइफ। अब अगर ये 2 डेटा में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है n इज इक्वल टू N0 ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी, उसके अंदर ये 2 डेटा रख दूँ, n की जगह पे N0/2। व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू N0/2 देन वी कैन राइट आउट t की जगह पे T1/2।
T1/2 क्या है, हाफ लाइफ। देखो तो n0/2 इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। n0 कैंसल, देन यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो ई रेस टू लैम्बडा टी, माइनस पावर है तो डिनोमिनेटर में लिखूँ तो प्लस पावर। अब ई रेस टू लैम्बडा टी को इस तरफ, टू को इस तरफ ऊपर, देन ई रेस टू लैम्बडा टी इज इक्वल टू 2। देन चलो मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, आप मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब अगर मुझे चाहिए टी नहीं, यहाँ पे टी नहीं रहने देना है, यहाँ पे लिखना है T1/2। मैंने क्या बताया, एन की जगह पे अगर मैं n0 यूज़ करूँ तो टी की जगह पे लिखना है T1/2। यहाँ पे भी है कैपिटल T इंटू 1/2, कैपिटल T इंटू 1/2। और हमें वही फाइंड करना है, हाफ लाइफ की इक्वेशन फाइंड करनी है, टी की T1/2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। इफ़ आई वॉन्ट T1/2 ई रेस टू माइनस लैम्बडा सॉरी ई रेस टू लैम्बडा T1/2 इज इक्वल टू 2 है, और उसमें से मुझे चाहिए T1/2, तो मैं ई रेस टू को इस तरफ दे रहा हूँ, तो क्या होगा मुझे बताओ। लैम्बडा इंटू T1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा ln2। कितने स्टूडेंट को ये पता चल गया। यहाँ पे था ई रेस टू T1/2 इज इक्वल टू 2, तो मैंने अगर लैम्बडा इंटू T1/2 यहाँ पे रहने दिया, ई को इस तरफ दे दिया, तो ln2। हमने अभी देखा था ln x इज इक्वल टू वाई होता है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, ई रेस टू वाई। ln x इज इक्वल टू वाई होता है, देन x इज इक्वल टू व्हाट, अगर ln को इस तरफ ले जाऊँ तो ई रेस टू वाई हो जाता है। सेम वे में अगर ई को फिर से इस तरफ लाऊँ तो, ई को मैं फिर से इस तरफ लाऊँ तो ln में लिख दो। अगर ये ई बेस में तो इस तरफ आ जाएगा तो ln में, ln में यहाँ पे तो बेस में चला जाएगा तो ई। क्लियर हो रहा है। सेम वे में हमने ये वाला पोर्शन आगे देखा हुआ है, अब हम लोग ये रिवर्स देख रहे हैं। अगर मेरे पास ई बेस में तो इस तरफ ले जाऊँ तो ln में हो जाएगा, देन माई लैम्बडा टी, देन x इज इक्वल टू ई रेस टू लैम्बडा टी, देन ई वाई इज इक्वल टू ln x। सेम वे में ई इस तरफ चला जाएगा तो वाई लैम्बडा वाई इंटू T1/2 इज इक्वल टू ln2। अब अगर मुझे T1/2 चाहिए तो T1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.693 अपन लैम्बडा। तो ये 0.693 क्या है, ln2 की वैल्यू। ln2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है पता है, ln की वैल्यू हमारे पास लॉग टेबल में नहीं होती, हमारे पास लॉग टेबल में सिर्फ लॉग की वैल्यू होती है। तो ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 2.303, 2.303 से मल्टीप्लाई करो log 2 को, तो आपको मिलेगा ln2। या फिर ln2 को कन्वर्ट करना है log 2 में तो 2.303 log 2 लिख सकते हो। 2.303 log 2 की वैल्यू मुझे रिमेंबर है 0.3010। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 0.693। क्लियर। तो T1/2 यानी कि हाफ लाइफ की इक्वेशन है T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपन लैम्बडा। नाउ हम लोग बात करने वाले हैं फुल लाइफ की, जिससे हम, आपकी बुक में नहीं पता मुझे क्या लिखा हुआ है, एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ भी कह सकते हो। चलो दूसरा हेडिंग मैंने बताया ना, इजी टॉपिक। बाकी मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ देखते रहना, बहुत इजी टॉपिक है और एग्जाम में यही सारे टॉपिक्स बुक आ जाएंगे और थियोरेटिकली आपको अच्छे से सॉल्व करना होगा। जब इनिशियल नंबर के हाफ न्यूक्लियस रह जाते हैं तब टाइम पीरियड को T1/2 कह सकते हो। T1/2 का मीनिंग है इनिशियल के हाफ हो जाना। चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अब कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मुझे अच्छा हुआ रिमेंबर हो गया। सोचो इनिशियली आई हैव 100 न्यूक्लियस, अगर मैं 2 मिनट्स के अंदर ये 50 न्यूक्लियस हो रहा है। इनिशियल न्यूक्लियस जो होते हैं उसके हाफ न्यूक्लियस होने में 2 मिनट्स हो रही है, तो यानी कि 2 मिनट्स क्या है मेरा हाफ लाइफ टाइम। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि मेरी ये मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ क्या होगी, तो क्या आंसर होगा आपका, इसको देख के बताओ आपका आंसर क्या होगा। गारंटी 99.99% स्टूडेंट ने सोचा होगा कि 4 मिनट होगा। अगर आपने ये टॉपिक पहले से नहीं पढ़ा है, अगर ये टॉपिक आप पहली बार मेरे पास ही पढ़ रहे हो, तो आप 99% आप यही सोचोगे कि 4 मिनट होगा। नहीं, हाफ लाइफ का मीनिंग होता है जो भी इनिशियल न्यूक्लियस है उसे हाफ करने तक का समय, हाफ करने तक का टाइम। समझो यहाँ पे मैं फिर से इसे अच्छे से लिख रहा हूँ। हाफ लाइफ यानी कि हाफ न्यूक्लियस होने तक का टाइम या फिर हाफ होने तक का टाइम। इसके अंदर मेन वर्ड हाफ ही है। यानी कि अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तो 100 के 50 होने में 2 मिनट्स लग रही है, तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में तो 50 के हाफ 25 ही होंगे, 0 नहीं हो जाएंगे। समझो इस चीज़ को। एक बार 100 से 50 हो गया,
देन अनदर हाफ लाइफ टाइम में यानी कि अनदर 2 मिनट्स में ये 50 के हाफ 25 होंगे, अनदर 2 मिनट्स में ये 25 के हाफ 12.5 होंगे। क्लियर हो रहा है? इस तरीके से चलेगी हाफ लाइफ। कभी भी ये मत सोचना कि अगर इस किसी न्यूक्लियस की हाफ लाइफ 5 मिनट है तो उसकी फुल लाइफ यानी कि एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ 10 मिनट्स होगी। हाफ लाइफ का मीनिंग है हाफ होने तक का टाइम। क्लियर हो गया? तो जो भी फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसे और हाफ करने में और हाफ लाइफ टाइम जितना टाइम जाएगा। क्लियर? चलो अब मीन लाइफ की बात करते हैं। तो मीन लाइफ में तो मैंने बताया था जब रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाए, जब उसके अंदर से कोई भी पार्टिकल एमिट होना बंद हो जाए, उसे मीन लाइफ कह सकते हो, उसकी एवरेज लाइफ कह सकते हो। और वो कब होता है? मैंने एक बार बताया था, जब फाइनल रिमेनिंग न्यूक्लियस इनिशियल न्यूक्लियस के ई टाइम्स हो जाए, सॉरी इनिशियल नंबर को ई से डिवाइड कर दो, तब जितने भी न्यूक्लियस रिमेनिंग रहेंगे उसे हम फुल लाइफ कह सकते हैं या फिर एवरेज लाइफ या फिर मीन लाइफ कह सकते हो आप। ओके, तब टाइम पीरियड को टोटल मीन लाइफ भी कह सकते हो। जब मैंने n इज इक्वल टू n0/2 लिखा तब टाइम पीरियड को मैंने t1/2 लिखा। सेम वे में मीन लाइफ के लिए जो सिंबल है ना वो है टॉ। ये टॉर्क वाला टॉ नहीं है, जब यहाँ पे टॉ आ रहा है तो समझो ये मीन लाइफ की बात हो रही है, न्यूक्लियस के मीन लाइफ की। ओके, व्हेन माय फाइनल न्यूक्लियस इज n0/e देन माय टाइम पीरियड इज मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ, जिसे टॉ से डिनोट करते। अगर ये दो डेटा में फिर से हमारी मेन इंपॉर्टेंट इक्वेशन में रख दो, n इज इक्वल टू n0e माइनस लेमडा टी एंड टॉ की इक्वेशन डिराइव करूँ तो मुझे मीन लाइफ की इक्वेशन मिल जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे हमने t1/2 की इक्वेशन डिराइव करी थी। कैसे करी थी? n0 कैंसिल, 1/2 ई रेस टू माइनस लेमडा इंटू t1/2, तो माइनस है तो नीचे आ जाएंगे तो ई रेस टू प्लस लेमडा इंटू t1/2। अब ई रेस टू वाला पोर्शन इस तरफ, 2 वाला पोर्शन इस तरफ। अब ई रेस टू माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 2, तो ई को उस तरफ ले जाऊँ तो लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू ln2। अब t1/2 चाहिए तो लेमडा डिनोमिनेटर में, ln2 की वैल्यू आती है 0.693, तो t1/2 की इक्वेशन है 0.693 बाई लेमडा। नाउ आई हैव पुट, यहाँ पे लिखता हूँ n इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लेमडा टी, देन आई हैव पुट दिस डेटा इन अवर दिस इंपॉर्टेंट इक्वेशन n इज इक्वल टू n0 e रेस टू लेमडा टी। n की जगह पे क्या लिखूंगा? n0/e इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लेमडा। अब t की जगह पे क्या लिखूंगा? व्हेन आई पुट n इज इक्वल टू n0/e देन आई कैन पुट t इज इक्वल टू फुल लाइफ या फिर मीन लाइफ t, एवरेज लाइफ t। आई हैव टू फाइंड आउट दिस t, n0 फिर से कैंसिल, देन यहाँ पे 1/e इज इक्वल टू माइनस पावर को अगर डिनोमिनेटर में लिखूँ तो प्लस पावर लेमडा इंटू टॉ। अब ये इस तरफ ऊपर, ये इस तरफ ऊपर, देन ई रेस टू लेमडा इंटू टॉ इज इक्वल टू ई या फिर ई रेस टू 1। अब तो दोनों का बेस सेम टू सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हो, 5/2 एंड यहाँ पे भी 5/2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 2 इस तरीके से कह सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर आपने कभी मैथमेटिक्स में इस टाइप की कैलकुलेशन करी, 5/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5/3, देन व्हाट इज एक्स, तो आपको डायरेक्ट कंपेयर करना होता है 2x। यहाँ पे देखो 5/2x इज इक्वल टू 5/3, देन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3, पावर कंपेयर कर सकते हो अगर बेस सेम है तो, देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है? सेम वे में e रेस टू लेमडा टी इज इक्वल टू e रेस टू 1, देन वी कैन कंपेयर e रेस टू लेमडा इंटू टॉ इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज आवर टॉ, देन द इक्वेशन ऑफ मीन लाइफ टॉ इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डीके कांस्टेंट। आवर फुल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। इसे डेफिनेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो, अगर मैं इसे थियोरिटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो, जितना मेरा डीके कांस्टेंट कम होगा उतनी मैं ज़्यादा लाइफ जीऊँगा, जितना मेरा डीके कांस्टेंट इंक्रीज होगा यानी कि जितनी स्पीड से मैं डीके हो जाऊँगा, जितना ज़्यादा मेरा डीके होगा उतनी मेरी मीन लाइफ कम होगी। डेफिनेशन देखो, लेमडा इज फुल टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डीके कांस्टेंट। तो अगर आपको ये डेरिवेशन नहीं भी आएगा तब भी इक्वेशन रिमेंबर हो जाएगी, बट डेरिवेशन भी इजी वन है ना, n की जगह पे n0/e लिखो और t की जगह पे टॉ लिखो। आपकी बुक वाली थियरी देखने मत जाना, टॉ की कुछ भी समझ में नहीं आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। एनसीईआरटी की है बट अच्छे वाली नहीं है, ये भी एनसीईआरटी का ही है बट ये थोड़ा ओल्ड कंटेंट है जिसमें अच्छे से समझ में आ जाता है। ओके, तो टॉ इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। चलो अब इन दोनों के बीच में रिलेशन भी प्रूफ करना है। देखो टॉ की इक्वेशन रिमेंबर रखो, टॉ की इक्वेशन है 1 बाई लेमडा, t1/2 की इक्वेशन रिमेंबर रखो 0.693 बाई लेमडा। अब देखना मैं यहाँ पे उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, t1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपन लेमडा, 1 अपन लेमडा की जगह पे मैं टॉ लिख सकता हूँ,
अभी हमने देखा ना 1/λ इज इक्वल टू व्हाट, 1/λ। यहाँ पे देखो, अभी ये फोकस होगा नहीं होगा, यहाँ पे अभी हमने देखा टॉ इज इक्वल टू 1/λ और टी इज इक्वल टू 0.693/λ। तो 1/λ की जगह पे हम लोग टॉ यूज़ कर रहे। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो है T1/2 इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू जगह पे टॉ। तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन की इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन रिमेंबर रख लो। नाउ एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि T1/2 इज नॉट इक्वल टू टॉ बाई 2, जो मैंने यहाँ पे दिखाई थी। वही सेम चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ कि T1/2 इज नॉट इक्वल टू टॉ बाई 2 और मे बी लेस देन टॉ बाई 2। T1/2 इज मे बी लेस देन टॉ बाई 2। मे बी क्या हर बार होना ही चाहिए, आपकी बुक में दिया हुआ है? मुझे परफेक्टली नहीं पता, इसलिए मैं बुक में देख रहा हूँ, नहीं दिया हुआ है। चलो कुछ नहीं दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन करके देख लेना किसी भी। हम लोग साथ में कैलकुलेशन करेंगे, चिंता मत करो। ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है बट ये प्रूफ हो गया है। ये हम लोग जब हमारा एग्जाम्पल कैलकुलेशन करेंगे तब देख लेंगे एक बार। ओके चलो, तो आज की लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर थी, तो एक बार मैं फिर से एक बार रिवीजन करूंगा आज की लेक्चर का। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छे से देख लेना, रिवीजन पे पूरा फोकस रखना अपना। ओके, कहाँ से स्टार्ट किया था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आर ग्रेटर देन कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी स्टेबिलिटी उसी की वजह से, क्योंकि इन दोनों से ज़्यादा है। अगर कूलम फोर्स इंक्रीज हो जाता तो रिपल्सिव फोर्स इंक्रीज हो जाता। देन सेकेंड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी लोअर रेंज, उसकी रेंज रैपिडली बिकम जीरो व्हेन इट्स गेट ग्रेटर देन सम फेम्टोमीटर। क्लियर हो रहा है? जिस वजह से वो अपनी सेचुरेशन ऑफ न्यूक्लियस प्रूफ करता है, क्योंकि जहाँ से भी निकालो सेम फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, या फिर जहाँ पे भी ऐड करो EBN में इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये पता है ना आपको, EBN कांस्टेंट है 0 to 170, सॉरी 30 to 170 के लिए। एंड थर्ड डिटेल फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस इज इट्स कैन बी अप्लाई टू प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, मीन्स इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। और अनदर थिंग इज, ये उसका एक डाउनफॉल है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हमारे पास कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है लाइक कूलम फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो देन आज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट हुई यहाँ से, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी के सबसे पहले किसने बात करी थी? बैक्वेरल ने 1996 में। रिमेंबर है ना 99? कौन सा एक्सपेरिमेंट? यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट को ब्लैक पेपर से व्रैप करके सिल्वर प्लेट से पैक करके उसके ऊपर एक फोटो सेंसिटिव प्लेट रख दी। फिर उसने क्या डिटेल निकाली कि वो कुछ उसके अंदर से ऐसा कुछ निकल रहा है जो ब्लैक पेपर और सिल्वर फॉइल को भी पेनिट्रेट करके बाहर निकला है। उसे ब्लैक लाइन या फिर ब्लैकिश पार्टिकल्स दिखे, ऐसा भी कह सकते हो। उसके वो न्यूक्लियस में से निकलने चाहिए तभी ये उसको ब्रेक करके बाहर निकल सके, उस वजह से वो न्यूक्लियर प्रोसेस थी। और जब भी ये बाहर निकल रहे हैं तो डीके हो रहा है। और उस डीके के अंदर क्या क्या कौन से डीके हो सकते हैं? एक्सपेरिमेंट से हमें क्या क्या पता चला? एक अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके हो सकता है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अल्फा डीके में क्या होता है? 2He4। बीटा डीके में E⁻- एंड E++। गामा डीके में प्रोटॉन्स किलोवाट में। चलो, तो ये 3 डीको के बारे में अगर इंक्लूडेड पोर्शन में नहीं है तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर अप नहीं करूँगा। वाई? देखो, मुझे डेडलाइन देनी थी मैडम को और मैंने 26 ऑफ जनवरी दे के रखी है। और जो हमारा 14 नंबर का चैप्टर है वो लार्जेस्ट वन इन द 12th फिजिक्स, बिकॉज वो पहले है ना फिजिक्स के अंदर 15 चैप्टर थे, तो वो 15 नंबर का जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला चैप्टर था ना वो भी इसी के अंदर ऐड कर दिया, लॉग एंटी लॉग। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग पोर्सन आने वाला है। ब्रेन भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो शायद हम लोग स्कूल में पढ़ेंगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसके अंदर सिर्फ जो इंक्लूडेड पोर्शन होगा वो ही कवर अप करूंगा। हाँ, हमें करना है। वो कब कवर अप करेंगे? तो ये जो 13 नंबर में जो रिमेनिंग पोर्शन मैं रहने दे रहा हूँ एक्सक्लूडेड पोर्शन, वो रिवीजन के टाइम पे मैं कवर अप कर लूँगा। आप चिंता मत करो, आपके लिए कुछ भी नहीं रहने देने वाला। चलो देन, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, बहुत अच्छी डेफिनेशन थी। द नंबर ऑफ न्यूक्लियस undergoing the decaying per unit time is proportional to the total number of nucleus in the sample at that time। याद है ना आपको? एट दैट टाइम पे जो रिमेनिंग है वही लिखना है। ओके, मैंने एग्जांपल दिया था 100 न्यूक्लियस 2 मिनट में 94 होते हैं, तो 6 न्यूक्लियस पर 2 मिनट, रिमेनिंग न्यूक्लियस 94। उसी के ऊपर से हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेल्टा एन अपन डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू एन, जहाँ पे डेल्टा एन को क्या है? सिर्फ एक नंबर है, इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नाउ यहाँ से मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैंने बताया ना बहुत लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। डेल्टा एन अपन डेल्टा डी प्रोपोर्शनल टू एन, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालू तो लैम्बडा, जो क्या है? डीकेइंग कांस्टेंट। अब डेल्टा एन अपन डेल्टा टी को डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है तो डी एन अपन डी टी की जगह पे लिखोगे, तब माइनस मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, और डीकेइंग के लिए डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज नेगेटिव होना चाहिए।
ओके, देन डेल्टा एन अपन डेल्टा टी की जगह पे फिर से लेमडा इंटू एन लिख दिया, एन को नीचे डी टी के ऊपर, इंटीग्रेशन एल एन, दोनों लिमिट अप्लाई कर दी, दोनों के बीच में माइनस है तो डिवीजन में लिख सकते हो, टी इज इक्वल टू जीरो कर दिया यहाँ पे, टी इज इक्वल टू जीरो। तो फिर हमें फाइनली एन अपन एल एन को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो एन अपन एन जीरो इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लेमडा टी, एंड द फाइनल एन इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी, जो हमारी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, एक्सपोनेंशियल डीके लॉ। रिमेंबर रखना, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वाली जितनी भी हमने कैलकुलेशन करी ना, 3-4 कैलकुलेशन, उन सब में यही इक्वेशन यूज हो रही है। ओके, एन इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू लेमडा टी, यानी कि इसी इक्वेशन से आगे वाले जितनी भी कैलकुलेशन करी, इसी इक्वेशन से आगे वाली सारी कैलकुलेशन के एग्जाम्पल इसी इक्वेशन से सॉल्व होंगे। और ये इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब कैलकुलेशन करोगे तब पता चलेगा कि अगर आपने इस इक्वेशन को अच्छे से नहीं समझा हुआ है, कैलकुलेशन तो आ गई आपको, डिराइव तो कर लिया, बट ये जो डेफिनेशन से उसे अच्छे से नहीं समझा हुआ है, ये इक्वेशन आपको कैसे डिराइव हो रही है उसके ये वो फील नहीं हो रहा है, तो फिर समझ लो कि आगे आपको एक्सरसाइज में भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर से एक बार देखना अच्छे से। फिर हमने देखा रेट ऑफ डीके, उसे ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेट ऑफ डीके मीन्स व्हाट, डीकेइंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस। फिर इसकी इक्वेशन था हमारे पास थी यहाँ पे, एन इज इक्वल टू एन जीरो ई रेस टू, ये रख दिया डिफ्रेंसिएशन, ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई रेस टू एक्स, फिर एक्स का एक बार डिफ्रेंसिएशन, सेम है ई रेस टू माइनस लेमडा टी का ई रेस टू माइनस लेमडा टी, माइनस लेमडा टी का डिफिनेशन माइनस लेमडा, माइनस माइनस प्लस एन जीरो लेमडा ई रेस टू माइनस लेमडा टी। क्लियर, ये हमारी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन थी। फिर हमने क्या देखा, आर इज इक्वल टू आर जीरो ई रेस टू माइनस लेमडा टी, यानी कि आर जीरो इज इक्वल टू व्हाट, एन जीरो इंटू लेमडा। सेम वे में आर इज इक्वल टू व्हाट, एन इंटू लेमडा, एन की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू रख दो, एन जीरो इंटू माइनस लेमडा टी, तो आपको एन की जगह पे वो वैल्यू रख दोगे तो फिर से यही इक्वेशन मिलेगी। तो मैंने रेडियो एक्टिविटी में यही इक्वेशन रिमेंबर करने के लिए बोला, आर इज इक्वल टू एन लेमडा। ओके, आर जीरो इज इक्वल टू एन जीरो लेमडा। फिर उसके यूनिट के बारे में डिस्कस किया हमने, बैक्वेरल ऐसा यूनिट, बैक्वेरल की याद में ये यूनिट दिया हुआ था। बैक्वेरल यानी क्या, डीकेइंग पर सेकेंड, सॉरी, रेडियो एक्टिविटी मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीकेइंग पर सेकेंड, उसे ही रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला, ज़्यादातर यूज़ होने वाली यूनिट है वो क्यूरी है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 डीकेइंग पर सेकेंड, डीकेइंग पर सेकेंड की जगह पे बैक्वेरल, तो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन। ओके, चलो फिर हम आ गए हमारे लास्ट टॉपिक में, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ। हाफ लाइफ यानी क्या, रिमेनिंग न्यूक्लियस आर हाफ ऑफ द इनिशियल न्यूक्लियस, एन इज इक्वल टू एन जीरो बाई टू, तब टाइम पीरियड को टी वन हाफ। सारे डेटा रख दो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन में, एन इज इक्वल टू एन जीरो रेस टू माइनस लेमडा टी में, कट करते जाओ तो आपको टी वन हाफ की इक्वेशन मिलेगी 0.693 बाई लेमडा। ओके, ये तो रिमेंबर रहेगा ना। फिर से ई अगर इस तरफ ले जाऊँ तो फिर से एल एन हो जाएगा। ओके, सेम वे में मीन लाइफ कब होगी, जब एन की वैल्यू, रिमेनिंग न्यूक्लियस की वैल्यू ई एन जीरो बाई ई हो जाएगी, तब जो टाइम पीरियड होगा वो टॉ से डिनोट होगा मीन लाइफ। ये सारे डेटा यहाँ पे मेन इक्वेशन में रख दिए, तो हमें टॉ की वैल्यू मिली 1/λ, टॉ की इक्वेशन मिली 1/λ, यानी कि हमारा मीन लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी डी के कॉन्स्टेंट। देखो डी के कॉन्स्टेंट हर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। यूरेनियम का डीकेइंग कांस्टेंट अलग होगा, तो पोटेशियम प्लूटोनियम का डिफरेंट डीकेइंग कांस्टेंट भी अलग होगा मीन लाइफ। चलो फिर उन दोनों के बीच का रिलेशन, टी वन हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपन लेमड़ा था, तो 1/λ को तो टॉ कहते, और ये नहीं होता है, टी वन हाफ इज नॉट इक्वल टू टॉ बाई टू, और ये मुझे प्रूफ करना बाकी है अभी। ओके, चलो तो ये हमारे इस वाले चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर थी, तो यहाँ पे वो लेक्चर भी ख़त्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, देख लेना अच्छे से।